वेलकम टू माई वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू डू स्टैटिस्टिक्स। इसमें सेंट्रल टेंडेंसी का इस वीडियो है। इसमें हम क्या करेंगे, मोड कैसा निकालते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, यहाँ तीनों सीरीज सीखेंगे। कौन सा? इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। तीनों सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। वी शैल डिस्कस these three series. Which one? Individual series, discrete series and continuous series. So now in this video we are going to discuss about the mode. Earlier to this video I have discussed about the mean and median. Okay, now what is mode? Mode is it is a most frequent value, that is known as what? Mode. The value which is most of the time is repeated, frequently repeated, that value is known as what? Mode. Frequent means, you know, I go to their house frequently. That means I go to their house almost always, daily I go, that's why you can say that I am going to his house frequently, or he is visiting us frequently. So this is called frequency. Frequency means number of times will be repeated. So the more the repetition, then the one with the value which is more repeated, that value is known as what? Mode. Now let's go and learn about the mode. So let me write about the mode. What is mode? Mode मतलब क्या है? The most frequent value is called mode. ठीक है, frequent मतलब क्या है? The most repeated value. Frequently मतलब क्या है? Most repeated value. रिपीटेड वैल्यू को फ्रीक्वेंट मतलब रिपीटेड। तो ये फ्रीक्वेंटेड वैल्यू को ये हम क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे क्या है? इंडिविजुअल सीरीज, और क्या है? इंडिविजुअल सीरीज, और क्या है? डिस्क्रीट सीरीज, देन कंटिन्यूअस सीरीज के ऊपर सम्स आता है। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज के ऊपर ही सम्स आएगा। और एक आएगा ये, और क्या है? मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी आएगा। मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी पूछेगा, इसके ऊपर ही सम्स आएगा। तो ये इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में कोई कैलकुलेशन ज़रूरत नहीं है। नो कैलकुलेशन इज नीडेड। नो कैलकुलेशन इज नीडेड। ठीक है, फॉर कंटिन्यूअस सीरीज ऑल दिस थिंग्स वी नीड ए फॉर्मूला। यहाँ वी नीड व्हाट? फॉर्मूला। ठीक है, वी नीड ए फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज इंडिविजुअल सीरीज? व्हाट इज इंडिविजुअल सीरीज? इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो आई विल गिव few examples of individual series. Let me give the individual series. Example is what? 2, 5, 3, 5, 10, 3, 5, 2, 2, 5. Then see how many twos are there? two देखो, ये एक, ये दो, ये तीन। 2 how many times it is repeated? 3 times repeated. 2 is 3 times repeated. After 3, let's see. 3 is, this is 1 3, this is 1 3, and anywhere else. So 3 is repeated how many times? Twice. That means 2 times. ठीक है, इसके बाद और कौन सा आया है? 2। अभी 5 करेंगे। 5 is repeated how many times? Let's count it. Let's count is 5 is, this is 1 5 and this is 1 5 है ना। ये एक 5, ये एक 5 2, फिर ये एक 5 3, ये एक 5 3। 5 is repeated how many times? 4 times. इसके बाद क्या आया? 10 कितने बार रिपीट हुआ?
only one है, one time only it has come, it is not repeated. So ज़्यादा टाइम कितना, कौन सा वाला पूछा, 4 times is the most frequent, frequency most frequent, frequency किसका है, 4 times है, 4 times क्या है, 5 है. So mode is equals to 5. कोई कैलकुलेशन नहीं, यहाँ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, यहाँ ज़्यादा बार वो हुआ है, इसलिए इसका कितना है, ये 5 हो गया, हमारा मोड हो गया. ठीक है. सो इसको हम, एक ही है मोड निकला, तो ये अभी मोड में एक से ज़्यादा भी निकल सकता है. अगर एक निकला, इसको हम कहते हैं, इफ़ वन मोड इज देयर देन वी से दैट इट इज़ सिंगल मोड, या वी कैन से unimodal. This series is known as what, unimodal series. Only one mode is there. Suppose in next example you see 4, okay, then 2, then 3, 5, और कौन सा लेंगे, 4, फिर 5, फिर और एक 7, 5, 4, 2 ले लेंगे. ठीक है. तो यहाँ 4 कितने, 2 को ले लेंगे, 5 कितने बार देखो, 5 ये 1, 2, 3, 5 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स है ना, 5 3 टाइम्स, 5 3 टाइम्स हो गया. फिर इसके बाद 4 कितने बार है, 1 4, 1 4, 1 4, 4 is how many times, 3 times, 4 is 3 times. Then 4 हो गया. अभी 2 is how many times, 2 times. Here is 1 2, here is 1 2, no more. So 2 हो गया. फिर 3 how many times, 3, here is 1 3, only once, only once only. ठीक है. और क्या रहा, 7 कितने बार हैं, 7 एक रह गया हमारे यहाँ, 4 हो गया. हाँ 7 ये है, ये एक 7 ऑल्सो 1 टाइम ओनली. सो सबसे ज़्यादा कौन सा है, ये 3 और ये 3 है. फ्रीक्वेंसी इज मोर वेयर, हियर 3 times द फ्रीक्वेंसी इज हियर more. That means what is our mode, frequency mode is equals to किसका है, 5 एक हो गया, 5 and 4, these two are mode. ये है, ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है ना, 5 and 4, these are the modes. ठीक है, these are the modes 5 and 4. इसको हम क्या कहते हैं, बाई, 2 मतलब बाई मॉडल या मल्टी मॉडल सीरीज कहते हैं, मल्टी मॉडल सीरीज. समझ में आ गया, ये हो गया. अब चलेंगे थर्ड टाइप में 14 15, फिर क्या लेंगे, 20 ले लेंगे, 14 फिर 15 फिर 20 है ना, इतना ही रहने दो. तो 14 कितने बार, 1 2, 14 how many times, 2 times. Then 15 how many times, here is 1, here is 1, 2 times. And 20 is how many times, this is 1, this is 1, 2 times. All are repeated, same repetition, only how many, same repetition, this much only things are there. That's why we will say all values have same repetition. That means here there is no mode is possible, no mode is possible.
because this is 14 also 2 times, 15 also 2 times, 20 also 2 times, 14 also 2 times, everything is 2 2 2 times. Who will, this 14 will say I will be the mode, 15 will say I will be the mode, 20 I will, then who is, all are equally repeated. That means we cannot decide which is the central value. So that's why there is no mode, we cannot decide the central value. ठीक है. अगर और एक फोर्थ टाइम अगर सोचो 2 3 4 5 ऐसा दिया, यहाँ कोई भी रिपीटेशन नहीं है, ऑल आर 1 1 1 1 1 टाइम ओनली. इसका मतलब यहाँ भी देर इज नो रिपीटेशन, देर इज नो रिपीटेशन, है ना, रिपीटेशन नहीं, इसीलिए नो मोड इज पॉसिबल. नो मोड इज पॉसिबल. और रिपीटेशन अगर सबका सेम होगा तब भी मोड नहीं है, या एक एक बार ही हुआ तब भी नहीं. ऑल मोड हैव सेम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी. So which one will be the central value? We can't say, we can't decide which one will be the central value. We cannot decide. Nothing is here. Here also there is no central value. Nothing is repeated. So there is no mode. Yeah, mode is not possible. हो गया. अब चलेंगे नेक्स्ट. क्या रहा हमारा? डिस्क्रीट. ना डिस्क्रीट सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज इज वेरी इजी, बहुत इजी है, बिकॉज यू डोंट नीड एनी कैलकुलेशन, यू डोंट नीड एनी कैलकुलेशन भी ज़रूरत नहीं है. और नो ब्रेन इज अप्लाइड. ब्रेन उससे भी इजी है. नो ब्रेन इज अप्लाइड. किसमें? इंडिविजुअल से भी, ये इंडिविजुअल थोड़ा ब्रेन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के बाय सीइंग यू कैन डिसाइड यस दिस इज द मोड. बाय सीइंग द टेबल यू कैन से दिस इज द मोड. लेट अस सी देन द शर्ट साइजेस. ठीक है, शर्ट साइजेस सोचो. एक है 38 साइज है, एक है 40 साइज का शर्ट कुछ है दुकान में, और 36 साइज कुछ है, 32 साइज है. उस दिन में फ्रीक्वेंसी यहाँ क्या है? नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड कितने हैं? 38 शर्ट्स कितने सोल्ड किए हैं? 30 शर्ट सोल्ड हो गया. 30 शर्ट. यहाँ क्या है? 12 शर्ट सेल किया. यहाँ कितना है? 14 शर्ट सेल कर दिया. यहाँ कितना है? 10. तो ज़्यादा शर्ट कौन सा है? 30 सेल हुआ है ना. तो ये हो जाएगा हमारा मोड. सो मोड इज इक्वल्स टू व्हाट? 38. समझ में आ गया. अब अगर हाईएस्ट मोड क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 30. इसलिए मोड इज 38 हम कह दिए. ठीक है. अगर ऐसा अगर टेबल फॉर्म में दिया, सोचो यहाँ मैं लिख दूँ टेबल फॉर्म, नहीं तो नेक्स्ट पेज में करेंगे. टेबल फॉर्म में ऐसा क्लास दे दिया. सोचो यहाँ क्लास दिया और यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया. 5 कितने बार? 4. 10 कितने बार? 8 बार. 20 कितने बार? 8 बार रिपीट हुआ है. 25 कितने बार? 5 बार रिपीट हुआ है. और 30 कितने बार रिपीट हुआ है? 2 बार ही रिपीट. हाईएस्ट मोड कौन सा होगा? ये है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सॉरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? ये है 8 है. तो कहाँ ये वाला और ये वाला है ना, ये है. तो इसलिए हम कहेंगे हियर द मोड इज व्हाट? मोड इज इक्वल्स टू 10 हो गया, और 10 एंड 20 ये दोनों मोड हो गया. बाई मॉडल सीरीज हो गया. ठीक है, समझ में आ गया देखते ही. इसलिए बहुत ईजी है. कोई ब्रेन वेन ने आंख देख लिया ये सबसे ज़्यादा कौन है? ये है. तो इसके अगेंस्ट कौन सा है? ये है. तो ये हो गया हमारा मोड. इसका अगेंस्ट ये भी 8 है. सो ये इसका अगेंस्ट कौन सा? ये है. ये है हमारा मोड हो गया. समझ में आ गया. अब चलेंगे हमारा कंटिन्यूअस सीरीज. कंटिन्यूअस सीरीज में यहाँ क्या है? क्लास इंटरवल्स दे देगा है. कंटिन्यूअस सीरीज 2 टाइप का है. एक है
एक है कंटिन्यूस, एक होगा कंटिन्यूस सीरीज, एक होगा और है डिसकंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज को कहते हैं एक्सक्लूडेड सीरीज कहते हैं, एक्सक्लूडेड सीरीज। और डिसकंटिन्यूस सीरीज को क्या कहते हैं? इंक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूडेड नहीं, ये एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं। ठीक है, सॉरी, इसको क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज ये हम कैसा पहचानेंगे? जब सम्स करेंगे तब मैं बताऊंगी एक्सक्लूसिव सीरीज कैसा है, इंक्लूसिव सीरीज। नहीं तो अभी भी कर सकते हैं। देयर इज ए गैप, देयर इज ए गैप। समझ गए? यहाँ का 1 to 4 है, ये है 5 to 8 है, यहाँ हो जाएगा 9 to 12 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 13 to 16। ऐसा ये 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ क्या है? गैप है। सो व्हाट इज द गैप? 5 minus 4 is 1, दिस 1 इज गैप। सो 1 का हाफ कर दे, जो गैप आया दैट यू डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2, that will become 0.5, and this to get the, so now it is conversion किसका है? एक्सक्लूसिव टू इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। इंक्लूसिव मतलब क्या है? डिसकंटिन्यूअस टू कंटिन्यूअस में कैसा चेंज करते हैं? कंटिन्यूअस। अभी हमको ये आ गया 0.5। अभी इसका एक्सक्लूसिव अभी इन 1 to 4 है ना, 5 to 8, 9 to 12, 13 to 16 है। अगर सोचो ये इसका 2, 5, 7, 2 है, फ्रीक्वेंसी हो गया, ये हो गया तुम्हारा क्लास हो गया। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। ये है एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज कैसे करेंगे? ये टू गेट द लोअर लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज व्हाट वी विल डू, द लोअर लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज लाने के लिए क्या करते हैं? 1 minus 0.5 माइनस करते हैं, वो हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 0.52। यहाँ क्या है? तो अपर लिमिट लाने के लिए 4 plus 0.5, तो 4.5 इसको ऐड करते हैं। अपर लिमिट लोअर लिमिट लाने कन्वर्शन, ये है कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अपर लिमिट ऑफ लोअर लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव से लाने के लिए क्या है? लोअर लिमिट माइनस 0.5 करेंगे, ये आ जाएगा लोअर लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज आ जाएगा। और अपर लिमिट लाने से इसका अपर लिमिट ऑफ इंक्लूसिव, ये इंक्लूसिव का है, अपर लिमिट ऑफ इंक्लूसिव प्लस 0.5 करेंगे तो आ जाएगा ये वाला अपर लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज। समझ में आ गया? इसमें भी 5 से माइनस करोगे, 5 से 0.5 माइनस करने से 4.5 आएगा, 4.5 to 8.5। ठीक है, अब देखो ये ऐसा आएगा 1 to 4, देन 5 to 8, 9 to 12, 13 to 16 है। सिर्फ कन्वर्शन में करें, फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ जो रहेगा वो रहेगा। इसको कन्वर्ट करेंगे 1.5 से -5 किए तो 0.5 होगा, ये हो जाएगा। ऐड कर दिए 4.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर 4.5 से ये हो जाएगा 8.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.5 से हो जाएगा 12.5, ये हो जाएगा। फिर 12.5 से ये हो जाएगा 16.5। समझ में आ गया? एक 0.5 यहाँ ऐड करते हैं और यहाँ 0.5 माइनस करते हैं, तो ये क्या कंटिन्यूस हो गया, ये सेम हो गया, ये भी सेम हो गया। इज देयर एनी गैप? देयर इज नो गैप। ये हमारा एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव सीरीज में करना
कैलकुलेशन करना मुश्किल है। इसलिए हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज़ को इंक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाकर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर ऐसा जब फर्स्ट तुम क्या देखोगे, क्लास इंटरवल देखोगे किस पैटर्न में है, एक्सक्लूसिव सीरीज़ में है या इंक्लूसिव सीरीज़ में है। अगर इंक्लूसिव सीरीज़ में है तो एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करोगे, अगर एक्सक्लूसिव सीरीज़ में ही है और कुछ नहीं, एज इट इज़ तुम फॉर्मूला डाल के कैलकुलेशन करना शुरू कर दोगे। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको एक्सक्लूसिव सीरीज़ क्या है, इंक्लूसिव सीरीज़ क्या है। इसी को ही हम जब कैलकुलेशन करते हैं, जब सम्स करते हैं, तब हम इसी रूल को यूज़ करते हैं। अब देखो सिंपल मोड कैसा निकालते हैं। ये हमारा 2009 में आया और 2020 में भी ऐसा ही बहुत इजी सम आया था, लेकिन मैं उसको नहीं लिखा, 2009 का ही लिया क्योंकि यहाँ थोड़े बड़े बड़े संख्या है। देखो द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स। 50 वर्कर्स का इनकम इज दिस मच डेली इनकम। हाउ मच? 100 to 120 rupees. How many people are getting? 12. And 122, 140, how many people are getting? 14 people are getting. Similarly, 140 to 160, how many? 8 people. 160 to 180, how many? 6 people. And 180 to 210 people. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? मैक्सिमम कितने लोगों को सैलरी मिल रहा है? ये 14 है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या है? लेट्स राइट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या है? 12। समझ में आया? 12 नहीं, 14 है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 14। दिस इज 14। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट में जो है वो हो जाएगा हमारा मॉडल क्लास। कौन सा है? ये 14 के अगेंस्ट में कौन सा? ये है। तो ये पूरा ऐसा रेक्टेंगल बना दोगे। तो मैक्सिमम दिस frequency is lying in which model? This frequency lying in 120 to 140 class interval. Therefore model class कभी कभी पूछेगा मॉडल क्लास कितना है? मॉडल क्लास इज 120 to 140। हो गया। तो ये इसका जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो है f। ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी जो होगा वो है f। ये हो जाएगा f। तो f इक्वल्स टू हमारा 14। दैट इज व्हाट? मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी कौन सा? इसको कहते हैं f1। ठीक है, f1। इसके ऊपर वाला को कहते हैं FO। द FO इज व्हाट? FO इज हाउ मच? 12। व्हाट इज दिस? दिस इज द फ्रीक्वेंसी। FO इज द फ्रीक्वेंसी किसका? फ्रीक्वेंसी बिफोर द मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया? FO क्या है? FO1 सर हर चीज़ में आप लिखोगे, लेकिन बाद में मैं नहीं लिखूंगी, आपको याद रखना है। तो फिर F2 क्या है? ये वाला F2 है। ये है F2। दूसरे उसमें कर देंगे। ये है F2 है। ठीक है, F2 कितना है? 8 है। ये है क्या? आफ्टर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आफ्टर। It is the frequency after the model class frequency। समझ में आ गया? ये L इक्वल्स टू हाउ मच? 120। एंड व्हाट इज हाइट? हाइट कैसे निकालोगे? 140 से 120 को माइनस कर दोगे, 0 20 हो गया हमारा हाइट हो गया। ठीक है, 20 हो गया हमारा हाइट। अब हमारा फॉर्मूला लिखेंगे। व्हाट इज आवर फॉर्मूला? मोड इज इक्वल्स टू
मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F4 अपॉन 2F1 माइनस F4 माइनस F2। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो अभी मोड हो गया। हमारा L कितना है 120 प्लस FO क्या है, FO इज 12 14 8। अच्छा, FO इज 12 14 8, 14 माइनस 12 अपॉन 28 माइनस, इसको सेम ही लिखोगे 12 माइनस 8 इंटू हाइट इज व्हाट 20। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो मोड इक्वल्स टू 120, मोड लिख लो, मोड इक्वल्स टू 120, ये हो गया प्लस 2 अपॉन 28 से 8, 20 माइनस करने से 8 इंटू 20, सो 2 4 आर 4 5 आर, दैट इक्वल्स टू 120 प्लस 5 मोड। ठीक है, मोड इक्वल्स टू that equals to 125, mode equals to 125, this is the answer। समझ में आ गया? ठीक है, अब क्या है इसमें हम कुछ वो किए क्या, देखो यहाँ क्या किए, हम कुछ कन्वर्ट किए क्या, क्योंकि हमने ये देख लिया 100 से 120, ये 120 यहाँ रिपीट हुआ है, ये 140 यहाँ रिपीट हुआ है, 160 यहाँ रिपीट हुआ है, 180 ये कंटिन्यूस में है, इसलिए हमको कोई चेंज करने का ज़रूरत नहीं हुआ है। अगर ये डिसकंटिन्यूस अगर हो तो हम कंटिन्यूस में चेंज करने को हमारा ज़रूरत था। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सो द फॉलोइंग टेबल शोज द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस of a certain disease admitted during a year in a particular hospital। एक हॉस्पिटल में कुछ लोग ज्वाइन किए, 5 to 14 एज ग्रुप वाले कितने 6 पेशेंट्स आए, 6 केसेस आया। 15 to 24 एज वाले कितने केसेस आया 11 केसेस। वैसे 25 एज से 34 एज के अंदर 21 केसेस आया। 35 से 44 लोगों के अंदर कितने केसेस आया 23 केसेस। कितना 45 to 54 एज ग्रुप के लोगों में कितने 14 केसेस। सिमिलरली 55 से 64 एज ग्रुप का लोगों के अंदर कितने केसेस आया 5 केसेस आया। तो टोटल कितने आया हमारा 80 केसेस आया है ना, वो दिया है यहाँ 80, टोटल 80 दिया है। अब हमको मोड निकालना है तो इसको हम पहले देखेंगे इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। यू सी 5 हियर 14 इज नॉट हियर, 14 यहाँ 15 से शुरू हो गया, यहाँ 24 है, यहाँ 25 से शुरू होगा, ये 34 यहाँ 35 से, तो यहाँ क्या है गैप है। दैट्स व्हाई फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा गैप क्या है 15 माइनस 14 इज व्हाट, 15 माइनस 14 इज व्हाट 1, that means divide by 2, that equals to 0.5। तो हमको अभी कंटिन्यूस का वो बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। तो अब लिखो एज, फिर एज ग्रुप हो गया, फिर ये हो गया फ्रीक्वेंसी हो गया। अब क्या है हम इसको 0.5 आया, 5 से माइनस करो, 0.5 माइनस ये हो जाएगा 4.5 आ गया। 4.5 से ये हो जाए 14 से ऐड कर दो 14.5 हो गया। फिर ये 15 से माइनस करो 0.5 तो ये हो जाएगा 14.5 से ये हो जाएगा 24.5। इसके बाद और कुछ ज़रूरत नहीं, ये 24.5 यहाँ लिख लोगे और इसका अपर लिमिट क्या है 34.5। ये फिर 34.5 यहाँ लिख दोगे, इसका अपर लिमिट क्या है 44.5 हो गया। और ये 44.5 यहाँ लिख दोगे, लोअर लिमिट लिख देंगे, इसका अपर लिमिट क्या है 44.5 हो गया। अभी 54.5 यहाँ 0.5 ऐड करते चले जाएगा, फिर ये हो जाएगा 54.5 से ये हो जाएगा 64.5। हम कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, ये हो जाएगा 6, ये हो गया 11, ये हो गया 21, ये हो गया 23, ये हो गया 14,
ये 5 एज इट इज़ हम लिख दे। लेकिन मॉडल क्लास में हमको क्या फ्रीक्वेंसी तक ही चाहिए, मीडियन में हमको क्या चाहिए, CF चाहिए, लेकिन यहाँ हमको CF का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी अगर निकाल दिए चलो हमारा काम ख़त्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डालते जाएंगे। तो हमारा यहाँ फॉर्मूला क्या है, सो लेट्स सी द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा है, यहाँ 23 इज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या करेंगे, इसको एक कॉलम बना देंगे, ठीक है। तो ये 23 है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अरे हाँ 23 बना दिए। फिर इसके साथ जो सामने है उसको भी हम अंडरलाइन के, ये हो जाएगा हमारा F1, ठीक है। इसके ऊपर वाला क्या है, F हो जाएगा, इसके नीचे वाला क्या होगा, F2 हो गया। ये है F2, ये F1, ये F1 हो गया। ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। सो वी शैल राइट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 23, maximum frequency is 23. This lies in which class interval, in 34.5 to 44.5. So lies in 34.5 to 44.5 class intervals. Therefore model class कौन सा है, 34.5 to 44.5. What is our F1? F1 क्या है, FO क्या है, F2 क्या है, हम अब लिख लेंगे। F1 हमारा क्या है, F1 इज देखें, F1 23, 21, 14, 23, 21 और 14। आपको मालूम F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास हो गया, और FO हो गया फ्रीक्वेंसी बिफोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास हो गया। दिस इज द फ्रीक्वेंसी, FO इज द, FO क्या है, फ्रीक्वेंसी बिफोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ये हो गया आफ्टर द मॉडल क्लास, आफ्टर द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास हो गया, मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी का बाद में जो हो गया वो हो गया F2 हो गया, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला लिखें, मॉडल L क्या है हमारा, L इज 34.5. व्हाट इज आवर हाइट, हाइट इक्वल्स टू 10 हो गया, हाइट इज 10। अब फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस FO अपॉन 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू हाइट। अब चलेंगे नेक्स्ट करने के लिए, नेक्स्ट अभी डाल देंगे सारे। मोड इक्वल्स टू 34.5 हो गया हमारा L प्लस FO क्या है, F1 क्या है 23, FO इज 21 अपॉन इसका ट्वाइस क्या है 2 3 आर 6, 2 2 आर 46 माइनस 20, ये 21 सॉरी माइनस 21 माइनस F2 क्या आया था, F2 इज 14 आई बिलीव, F2 इज 14 या F2 इज 14 इंटू हाइट इज हाउ मच 10, ठीक है। सो दिस इक्वल्स टू मोड इक्वल्स टू 34.5 प्लस 23 से 21 गया तो 2 हो गया, ये 46 माइनस ये हो जाएगा 5 4 1 5 3 35 इंटू 10 दैट इक्वल्स टू 34.5 प्लस 2 अपॉन 6 minus 5 is 1 into 10 that equals to 34.5
प्लस 10 2s are 20, 20 upon 11 that equals to 34.5 प्लस 20 को 11 से डिवाइड करो, 11 1s are 11, ये हुआ 10 minus 1 is 9, 90, 11 8s are 88, 10 minus 8 is 2, फिर 0, 11 1s are 11, 10 minus 1 is 9, फिर ले लें 80, that means approximately 1.82, तो that equals, इसको ऐड कर दो 34.5 से 1.82, तो ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 6, that equals to 36.32 is the answer। समझ में आ गया? ठीक है, ये सारे कैलकुलेशन है, समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा, क्या है, कंटिन्यूस नहीं था, ये है हमारा इंक्लूसिव सीरीज था, उसको हम एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करके हम कर लिए। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा, लाइफ टाइम इन आवर्स क्या दिया है और फ्रीक्वेंसी दे दिया है 0 to 20 कितना है 10 फ्रीक्वेंसी, 20 to 40 35 फ्रीक्वेंसी, 40 to 60 61 फ्रीक्वेंसी, 60 to 80 61 फ्रीक्वेंसी, 80 to 100 फिर 38 फ्रीक्वेंसी, और ये वाला 100 to 120 29 फ्रीक्वेंसी। अभी इसको देख के हम टेबल बना दी, ये टेबल बना दिया, ये टेबल में देखो ऐसा करके, फिर ये फ्रीक्वेंसी टेबल, ये फ्रीक्वेंसी कॉलम है, फ्रीक्वेंसी कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है, ये 61 और 61 है, यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम frequency equals to 61. This is lying, this 61 lies in class interval कौन सा है, in 2 class interval लिख देंगे, 2 class intervals. Therefore here 2 modal classes are there. Here 2 model classes there. One is what, 40 to 60, second is what, 60 to 80, 2 मॉडल क्लासेस हुआ। अगर हम इसको ही मॉडल क्लास लेके आज अभी करेंगे, दोनों कर सकते हैं मॉडल क्लास, दोनों में भी आंसर सेम आएगा, लेकिन हम ये लेके करेंगे, एग्जाम में यही लेके करोगे, फिर मैं प्रूफ करने के लिए ये बाद में बताऊंगा, बट दिस इज़ नॉट नेसेसरी, वन इफ़ यू डू दैट इज़ सफिशिएंट। सो इसको लेके करेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा क्या, अगर सोचो ये मॉडल क्लास लिए, ये हो जाएगा F1 हो गया, F1 is 61 and FO is also 61, F2 is 38, ठीक है। और मॉडल क्लास लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट इज 60 to 80 की है 60, और हाइट क्या है 80 minus 60 is 20, हाइट हो गया। अब फॉर्मूला लिखे, मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस FO अपॉन 2F1 माइनस, सेम उतार दोगे, आँख बंद करके उतार दोगे, फिर बाद में F2 माइनस करके लिख के फिर हाइट कर दोगे। अब मोड इक्वल्स टू क्या है, L हमारा क्या है, L इज 60 प्लस F1 क्या है 61, FO क्या है 61, इसका ट्वाइस, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 120, फिर 122 माइनस 61 माइनस 38 इंटू हाइट क्या है 10 है, 10 ना, 80 to 60 20 है। तो अब हो जाएगा मोड इक्वल्स टू 60 प्लस 61 माइनस 61 इज 0 अपॉन 122 माइनस 61 माइनस 38 इंटू 20। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको 0 अपॉन समथिंग इज व्हाट 0 इंटू 20 इज व्हाट 0, सो मोड इक्वल्स टू 60, आंसर हो गया, आ गया। अब देखेंगे नेक्स्ट करके लिखेंगे कैसा होगा, और बट दिस इज नॉट necessary, just to let's try whether it is coming same answer now. Let us take 40 to 60 model class। यहाँ
L इक्वल्स टू 40 हुआ, F1 हो जाएगा 61, FO हो जाएगा समथिंग, F2 आल्सो, F2 61 ही होगा, 5 होगा, FO इज 35। ठीक है, समझ में आया? तो हम सेम मेथड, लेकिन हम उसका सेकंड वाला को लेके हम कर रहे हैं। तो अभी तो अब हम इसका फॉर्मूला डाल, हाइट क्या है, 40 माइनस 60 इज 20, हाइट इक्वल्स टू 20 कर दिया एज इट इज। तो अब लिखेंगे मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस FO अपॉन 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू हाइट। इसको पहले सॉल्व करते हैं, है ना, इसलिए ब्रैकेट के अंदर रख दिया। अब मोड L क्या है हमारा, L इज 40 प्लस FO क्या है, FO इज 61, सॉरी F1 इज 61, FO क्या है 35 अपॉन 2 1 2 2 6 12, ट्वाइस ऑफ F1 माइनस 35 माइनस 61, इस करके फिर इंटू हाइट इज 20। ठीक है, अब मोड इक्वल्स टू ये 40 हो गया प्लस 61 माइनस 35, 11 माइनस 5 इज 6, 26, ये हो जाएगा 26 अपॉन ये है 6 91, 122 माइनस 91, 2 माइनस 5 1 6 हो रहा है, 5 1 6 96, this is minus 12 minus 6 is 6, here 11 minus 9 is 2, this becomes 26 into 20 is 26, 26 1। तो अभी मोड इक्वल्स टू 40 प्लस 120 सर 20, 40 20 दैट इक्वल्स टू मोड इक्वल्स टू 60। आ गया या नहीं, सेम आंसर ही आया। तो इसलिए कोई मतलब कोई भी तुम कर सकते हो, जो एग्ज़ाम में होगा आपका दिमाग में 2 आएगा वो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब चलेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी में सम करने के लिए। ठीक है, हो गया। अब चलेंगे ये सम के लिए। ये सम में क्या कहा है, द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 36। ये मोड क्या दिया, 36 दे दिया और कह रहे फाइंड द मिसिंग यहाँ कोई एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक है, वो मिस कर दिया, वो फ्रीक्वेंसी निकालो। कहा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है, हम यहाँ से नहीं कह सकते क्योंकि ये 16 अब कह दोगे, लेकिन ये दिस एक्स में भी 20, x may be a 50, x may be a 2, we don't know whether x is greater than this 16 या less than 16, we can't judge ourselves. That's why what we shall do, he has given the mode 36 is there. This mode is coming which class interval, that we have to find out. 36 किसके अंदर है, 20 और 36 के 30 के अंदर 36 है क्या, नहीं है। 30 से 40 के अंदर है या नहीं, या 30 के बाद 36 आ रहे और 40 लेस देन 40 और ग्रेटर देन 30, सो इट इज कमिंग इन दिस क्लास इंटरवल। दैट्स वाई दिस इज आवर क्लास इंटरवल। ठीक है, ये है हमारा मॉडल क्लास निकला है। समझ में आ गया। सो व्हाट इज आवर मोड, मोड इज गिवन क्या है, मोड इज 36। सो गिवन क्या है, मोड इज 36 and this mode, and it is lying in which class interval, 30 to 40 class intervals. Therefore 30 to 40 is the model class। हो गया, L is 30 हो गया और F ये हो गया F1 हो जाएगा और ये हो गया FO हो गया, ये है F2 हो जाएगा। तो फिर यहाँ F1 इक्वल्स टू 16, FO इक्वल्स टू X एंड F2 इक्वल्स टू 12। हो गया, ये निकाल दिए, हो गया हमारा, ये आ गया। तो अब चलेंगे कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, अब मोड इक्वल्स टू हाइट हम लिख दिए, क्या हाइट लिखा, हाइट इक्वल्स टू
40 माइनस दैट इज 10 हो गया। अब चलेंगे मोड, मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस FO अपॉन 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू हाइट। तो अभी मोड इक्वल्स टू L क्या है हमारा, L इज आवर, अभी सारे वो डाल देंगे, डाटा डाल देंगे है ना। सो मोड कितना है, मोड जो है वही डाल देंगे तो काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। चलो 36 दे दिया, 36 लिख लिए। L क्या है 30 है, प्लस FO क्या है, F1 क्या है, F1 इज 16 x 12। अच्छा F1 इज 16 माइनस x, ये होगा 16 2 सर 32 माइनस x माइनस 12 इंटू हाइट इज 10 में रखा, हाँ 10 ठीक है। तो अभी 36 को इधर ले, 30 को इधर लेंगे, 36 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 16 माइनस x अपॉन ये है 201 20 माइनस x इंटू 10। तो अभी 6 इक्वल्स टू 16 माइनस x अपॉन 20 माइनस x इंटू 10। तो अभी 6 इक्वल्स टू 16 माइनस x अपॉन 20 माइनस x इंटू 10। अब ये 10 को इधर ले आएंगे, 6 अपॉन 10 इक्वल्स टू 16 माइनस x अपॉन 20 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 20 माइनस x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 16 माइनस x। अभी 6 2 सर 12 हो गया, 120 माइनस 6x इक्वल्स टू 160 माइनस 10x प्लस इंटू माइनस माइनस 10 इंटू एक्स इज 10x। अभी x को इकट्ठे रख देंगे, 6x 10 माइनस 10x को इधर आएंगे तो प्लस 10x हो गया। ये 160 डाल दिए, ये वाला यहाँ डाल दिए है ना। फिर ये 120 को इधर लाएंगे, प्लस वाला माइनस हो गया 120, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 40। देन x इक्वल्स टू 40 अपॉन 4, 4 10 आर, तो x इक्वल्स टू 40। मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या आ गया, मिसिंग फ्रीक्वेंसी x इक्वल्स टू 10। दिस इज आवर आंसर। सो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड सेंट्रल टेंडेंसी जो है मीन मोड मीडियन है, उसका रिलेशनशिप के लिए एक फार्मूला रखे, उसको कहते हैं इंपेरिकल फार्मूला। उसको कैसा याद रखेंगे, इंपेरिकल फार्मूला याद रखेंगे, मी माइनस मी इक्वल्स टू मो, मी मो, मी माइनस मी इक्वल्स टू मो। ये कैसा होगा मैं बताऊंगी। पहले व्हाट इज इंपेरिकल फार्मूला। सो क्या लिखेंगे, द 3 measures of central tendency are connected by the following relation, by the following relation। क्या है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल्स टू 1 मोड। तो मी हो गया ये मी होगा ये, मी माइनस 1। तो कैसा याद रखोगे, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, ये याद रखोगे, 3 माइनस 2 इक्वल्स 1। तो मीडियन का मीडियन पहला आएगा, मीन पहला आएगा, मी दोनों मी है, ये मीडियन होगा, ये मीन होगा, कौन सा क्या होगा, कैसा 3 माइनस 2 इज 1 हमको मालूम है, लेकिन किसको, मीन के लिए 3 करेंगे या मीडियन के लिए। देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस लेटर्स किस में आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स कितने में, 1 2 3 4 5 6, मीडियन में 6 अल्फ़ाबेट्स है। तो ये बड़ा है और इसमें 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, यहाँ 4 है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, मीडियन है, ये 3 सबसे बड़ा है, वो 3 के लिए ये लिखोगे 3 मीडियन, मीडियन कर दोगे, माइनस अनदर 2 मी मोड तो नहीं होगा, मी इज नेक्स्ट इज व्हाट, मीन हो गया। फिर मो फॉर मोड, 1 इज
मोड, ऐसा करके याद रख लोगे। समझ में आ गया? इसको इस तरीक़े से याद रखना। ये है सेंट्रल टेंडेंसी का रिलेशनशिप। ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछेगा, या ये देगा, ये देगा, ये पूछेगा, कुछ भी इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन 1 मार्क का आ सकता है, या मीडियन का फॉर्मूला ऊपर बेस करके क्वेश्चन पूछ सकता है। उल्टा पलटा लिख देगा तो कौन सा वाला करेक्ट है। में इम्पेरिकल फार्मूला के इसको कहते हैं इम्पेरिकल फार्मूला। यहाँ लिखना भूल गए, यहाँ लिखते हैं, ये है इम्पेरिकल फॉर्मूला। ये है इम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, व्हाट इज इम्पेरिकल फॉर्मूला? द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर कनेक्टेड बाय द फॉलोइंग रिलेशन, दैट इज नोन एज व्हाट? इम्पेरिकल फॉर्मूला। ये है इम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या है? द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर कनेक्टेड बाय फॉलोइंग रिलेशन। क्या रिलेशन है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल्स टू 1 मोड। मी मो करके याद रखो। ये है इम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बाय वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज इफ यू लाइक, प्लीज press the like button. Bye bye.